GMS means Java Message Service. Okay, what is the use of GMS? GMS, it is an API which is used to send messages from one application to another application. Suppose let us consider one scenario. One application, suppose application A is running in India and another application B is running in some other country. Okay. So to send message from application A to application B, we need to use JMS. So what is JMS? It is an API, message service API, which is used to send messages from one application to another application. See, what are the advantages of JMS, Java Message Service? It is asynchronous. It is asynchronous. Asynchronous means to receive the message, client is not required to send request. समझ रहे हो? अगर मैसेज रिसीव करना है तो क्लाइंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड रिक्वेस्ट. ये आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है. अगर मैसेज कुछ भी रिसीव करना है तो क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, उसके लिए नहीं. ठीक है, दैट इज आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन. मैसेज विल अराइव ऑटोमेटिकली टू द क्लाइंट. लाइक सब्सक्राइब, जो हम लोग सब्सक्राइब करते हैं डिफरेंट नेटवर्क से हम लोग को इन्फॉर्मेशन आते हैं. हमारे सिम का यू कैन टेक एग्जाम्पल. ठीक है, सब्सक्राइब जो किए हो जो तुमने जो ऑपरेटर में, उसके अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग द ऑफर्स. ठीक है, दैट इज आसिंक्रोनस. आसिंक्रोनस मीन्स जो सब्सक्राइब के अकॉर्डिंग वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन. तो मैसेज क्या है, विल अराइव ऑटोमेटिकली टू द क्लाइंट. क्लाइंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड रिक्वेस्ट. ठीक है, टू रिसीव मैसेज client is not required to send request. The message will arrive automatically to the client. Okay. And second advantage is it is reliable. JMS is reliable because it provides assurance that the message is delivered. Assurance provide करता है कि ये message क्या हो गया, delivered हो गया. So it is reliable and it is asynchronous. That is the advantage of Java message service. Now see, there are two types of messaging domains in JMS. दो types है इसमें, point to point and second type है subscriber message domain. First type है point to point message domain. Second type is subscriber message domain. See, point to point means in point to point, one message is delivered to one receiver only. Point to point messaging domain means one message is delivered to one receiver only. Okay, one message किसको deliver to one receiver only. So in point to point messaging, queue is used. क्या use होता है in point to point messaging? Queue is used. Okay, queue use होता है as a middleware in point to point messaging. So what is queue? Queue is responsible to hold the message. Queue का क्या responsibility? It is responsible to hold the message until receiver is ready. क्या काम है? What is the use of queue? Queue is responsible to hold the message until the receiver is ready. जब तक receiver ready नहीं होता, queue क्या करेगा? Will hold the message. आपका कहाँ पे use होता है? It is used in point to point messaging. It is used in point to point messaging means one message is delivered to one receiver. इसमें क्या use होता है? Queue system. Queue means एक middleware है that is responsible to hold the message until receiver is ready. Now see, different examples are given here for point to point messaging. First example क्या, to process system logs and alert events. यहाँ पे दिखा रहा है log processing कैसे हो रहा है. log producer 1, log producer 2, ये queue में messages है, security check, trend analyzer, log में कोई issue आता है तो issue analyzer. See, a JMS client can use to watch for different log messages and send the messages for the different log processes.
we can have different log processing systems to identify security threats, trends of user actions, यूजर के actions क्या है, सिस्टम में इशू क्या है, तो ये सब क्या कर सकता है, client can use, okay, client can use JMS message service. तो ये जो एग्जांपल है लॉग मैसेजेस देखना, सिक्योरिटी थ्रेड्स के, ट्रेंड ऑफ यूजर एक्शन, सिस्टम इश्यूज, so this is point to point, this is point to point because see सिक्योरिटी चेक का एक होगा वन सेंडर वन रिसीवर, इसके लिए अलग पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा ट्रेंड एनालाइजर चेक करने, देन इसके लिए अनदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इश्यू एनालाइजर के लिए. दिस एग्जांपल इज इंडिकेटिंग दैट ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग डोमेन है. सेकेंड में अलर्ट कैसे करेगा वो, ठीक है, सिक्योरिटी चेक होने के बाद लेट्स कंसीडर सिक्योरिटी चेक प्रोसेस. जब सिक्योरिटी चेक डिटेक्ट्स एनी थ्रेट, कोई भी थ्रेट अगर उसको मिलेगा, देन इट कैन अलर्ट रिलेवेंट पर्सनल विद सेंडिंग ईमेल्स. जो पर्सनल रिलेवेंट पर्सनल है उसके ईमेल के थ्रू वो नोटिफाई करेगा अगर कोई भी सिक्योरिटी में कोई भी थ्रेट है, ठीक है. द सेम एज सी वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ समटाइम्स वी आर एंटरिंग wrong password, okay, while doing the online transaction we are entering wrong password. So what happens, we are getting the message on a registered mobile number, okay, you have entered incorrect mobile number, or you have entered incorrect OTP or something, something like that. We are getting the information on a registered mobile number, or on email also we are getting the information like you have done the transaction of this much amount, okay. So what is this, this is it is a type of point to point messaging only, it is a type of point to point messaging only. So one sender means kya hai, one to one type of communication, it is one to one type of communication. तो यहाँ पे यही दिया है कि वो रिलेवेंट जो सिक्योरिटी जो थ्रेट डिटेक्ट होगा, इट कैन अलर्ट रिलेवेंट पर्सनल विद सेंडिंग ईमेल्स, ठीक है. सेम एज द सिक्योरिटी चेक प्रोसेस, अदर कैन आल्सो क्यू फॉर अलर्टिंग. जो अदर जो थ्रेट आएंगे मींस जो अदर यूजर्स के लिए भी अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, क्यू में स्टोर होगा. कहाँ पे स्टोर होगा, क्यू में स्टोर होगा इंफॉर्मेशन. Then this is an example of asynchronous request processing. See what is asynchronous? What is asynchronous communication? Asynchronous communication किसको बोलते हैं हम लोग, जब ऐसा communication, ठीक है, communication which happens where information can be exchanged independent of time. asynchronous communication means information हम लोग exchange कर सकते हैं independent of time, time पे depend नहीं है. That is asynchronous communication means it doesn't require the recipients, जो recipient है, it doesn't require the recipient immediate attention, ठीक है, immediate attention का need नहीं है. जो इसमें क्या होता है asynchronous communication में, we can respond, जो receiver है वो respond कर सकता है मैसेज को according to the convenience. See asynchronous communication का example you can take, then you will get clear idea. emails, जो emails है हमारे, that is asynchronous communication, ठीक है. emails हो गया. देन ऑनलाइन जो forums होते हैं, ऑनलाइन forums है ना, डिफरेंट ऑनलाइन forums where we can put our queries, then later on ऐसा नहीं कि ऑनलाइन forums में जब when we are sending the queries immediately we will get the reply, ऐसा है क्या, नहीं. We will put their query on the online forums, then after that जो भी person responsible होगा to see the queries and all, वो person क्या करेगा, the person will respond according to that message. It is asynchronous means it doesn't require, it is independent of time. ऐसा नहीं कि immediate receiver का attention इसमें required है, ठीक है. तो immediate attention is not required, ठीक है, receiver का. So it is asynchronous, it is independent of time, like email we are sending. तो ईमेल मैसेजेस जो हम लोग सेंड करते हैं, तो ऐसा है क्या, जो रिसीवर है और उसको ये होना चाहिए वो टाइम पे ऑनलाइन होना चाहिए, देन ओनली वी कैन सेंड द इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ है क्या, नहीं. वी कैन डायरेक्टली बाय पुटिंग द ईमेल आईडी वी कैन डायरेक्टली सेंड द ईमेल, ओके. तो इट इज एसिंक्रोनस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन.
एग्जाम्पल क्या asynchronous का? emails and online forums. Okay. So this example is indicating it is, see, GMS is asynchronous. GMS का advantage क्या? It is asynchronous. तो example ये दिया हुआ asynchronous request processing का example दिया हुआ है यहाँ पे. When a client buy product from e-commerce website, main goal of the system is to complete the transaction and allocate a product for it. यही रहेगा ना, जब भी client प्रोडक्ट बाई करेगा फ्रॉम ई कॉमर्स साइट, कोई भी साइट से, लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, ठीक है. तो मेन गोल क्या है सिस्टम का? ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए क्लाइंट का एंड उसको एक प्रोडक्ट एलोकेट होना चाहिए. ओनली ट्रांजेक्शन ही, प्रोडक्ट पे ही होगा ना ट्रांजेक्शन. अदर देन दैट देयर विल बी माइनर गोल्स लाइक क्या क्या होना चाहिए अदर गोल्स? सेंडिंग प्रोडक्ट डिटेल्स एज अ मेल पे प्रोडक्ट डिटेल्स जाना चाहिए, इंक्लूडिंग क्लाइंट इनटू द लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफ द कंपनी के डेटाबेस में क्लाइंट का इंफॉर्मेशन ऐड करना, कस्टमर का इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करना. ठीक है, ये सब गोल होगा सिस्टम का. सिस्टम कैन पुश कस्टमर इंफॉर्मेशन इनटू अ क्यू. सिस्टम क्या करेगा? कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है क्यू में पुश करेगा एंड कंप्लीट द मेन गोल. जो मेन गोल है, मेन, व्हाट इज मेन गोल? ट्रांजैक्शन और एलोकेशन ऑफ प्रोडक्ट. Transaction and allocation of product. Then Q will distribute the details into the other programs. Then Q will distribute the details into other programs and they will complete the minor task. See क्या होगा? Q में कौन से टाइप के इंफॉर्मेशन आ गए? मेन गोल इंफॉर्मेशन आ गए. ठीक है. Q then क्या करेगा? उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिटेल्स अदर प्रोग्राम्स को, लाइक ईमेल, लॉयल्टी प्रोग्राम का एक होगा डेटाबेस, ईमेल के लिए एक सिस्टम होगा, कस्टमर इन्फो के लिए एक सिस्टम होगा. ठीक है. तो इससे क्या हो रहा है? ये एसिंक्रोनस है. ये एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग क्यू है. क्यू में सब पुश हो रहा है इन्फॉर्मेशन. क्यू देन उसको क्या कर रहा है? वन बाय वन उसको पुश कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर जो भी उसका डेटाबेस है. तो इट इज एसिंक्रोनस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. सिंक्रोनस में से क्या होता है? जो दोनों क्लाइंट और जो ये हमारे सर्वर होते हैं, ठीक है, दोनों का क्लॉक सिंक्रोनाइज होना चाहिए. इन सिंक्रोनस प्रोसेसिंग दोनों के क्लॉक सिंक्रोनाइज होना चाहिए. बट असिंक्रोनस में ऐसा नहीं है. ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. ये अनदर एग्जांपल है क्यू का. कस्टमर सर्विस चैट एप्लीकेशन. इन अ कस्टमर सर्विस देयर विल बी फ्यू एम्प्लॉइज टू रिप्लाई फॉर ऑल कस्टमर कंप्लेंट्स. ये कस्टमर जो कंप्लेंट करता है, तो कस्टमर सर्विस में फ्यू एम्प्लॉइज रहेंगे जो रिप्लाई करेंगे कस्टमर कंप्लेंट्स को. तो यहाँ पे दिस एग्जांपल इज शोइंग दैट ऑल क्लाइंट रिक्वेस्ट आर, जितने भी क्लाइंट के जो कंप्लेंट्स है, रिक्वेस्ट आर पुश टू अ क्यू. एक क्यू में है एंड देन वन बाय वन क्लाइंट विल कनेक्ट विद एन एम्प्लॉय. वन बाय वन क्लाइंट किससे कनेक्ट कर रहा है? एम्प्लॉय से कनेक्ट कर रहा है. एम्प्लॉय मीन्स जो कस्टमर सर्विस का जो पर्सन है, कस्टमर सर्विस कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट जो है, ठीक है, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लाइंग टू ऑल द कंप्लेंट्स. ओके. तो वो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय थ्री. तो वन बाय वन कनेक्ट हो रहा है, जैसे कॉल कनेक्ट होता है. क्लाइंट वन का एम्प्लॉय वन, क्लाइंट टू, एम्प्लॉय टू, क्लाइंट थ्री, एम्प्लॉय थ्री. तो इट इज अ टाइप ऑफ वन टू वन कम्युनिकेशन ओनली, पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग ओनली, राइट. इट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट टू पॉइंट. एंड इन पॉइंट टू पॉइंट क्या यूज हो रहा है? क्यू यूज हो रहा है. ठीक है, टू होल्ड दी मैसेजेस. टू होल्ड दी मैसेजेस क्या है वो? क्यू इज यूज. जब तक रिसीवर रेडी नहीं है, क्यू विल होल्ड दी मैसेज. क्यू विल होल्ड दी मैसेज अंटिल द रिसीवर इज रेडी. अनदर एग्जांपल इज पॉइंट टू पॉइंट का एग्जांपल है ये. एसएमएस बेस्ड एप्लीकेशन. व्हेन क्लाइंट सेंडिंग एसएमएस टू एसएमएस एप्लीकेशन, क्लाइंट सेंड एसएमएस किसको भेज रहा है? कोई भी एक एसएमएस एप्लीकेशन को भेज रहा है. कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है एसएमएस का. द रिक्वेस्ट आर पुश टू अ क्यू.
क्यू में जाएगा रिक्वेस्ट एंड डी क्यू व्हेन द एसएमएस एप्लीकेशन रेडी एंड सेंड अ रिस्पांस बैक। सी जैसे हम लोग व्हाट्सएप में मैसेजेस भेजते तो कब तक वो एक्टिव नहीं होगा जब तक इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। सपोज वो क्यू में है, अभी अभी कहाँ तक वो मैसेज क्यू में है, ठीक है। तो वैसे ही कब डी क्यू होगा, जब एप्लीकेशन का सिस्टम रेडी होगा, जब उसको इंटरनेट कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू इसको रिस्पॉन्स बैक वी कैन सेंड द रिस्पॉन्स, ठीक है, बैक टू द क्लाइंट। So it is point to point messaging only, okay। एसएमएस बेस्ड जो एप्लीकेशन है, इट इज पॉइंट टू पॉइंट, लाइक अभी व्हाट्सएप हमारा हमारा एसएमएस बेस्ड एप्लीकेशन है, राइट। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है जो एसएमएस बेस्ड एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में एसएमएस का फीचर है, राइट। तो दैट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग। अभी हमारा फोन का जो सिस्टम है एसएमएस, ठीक है, तो दैट इज पॉइंट टू पॉइंट। तो जेएमएस में, जावा मैसेज सर्विस में दो टाइप्स की मैसेजिंग डोमेन है। फर्स्ट टाइप क्या है, पॉइंट टू पॉइंट। वी हैव टेकन वेरियस एग्जांपल्स इन पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग डोमेन। सेकेंड टाइप उसका है, सेकेंड टाइप इज फर्स्ट टाइप इज पीटीपी, पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग डोमेन। इसमें क्या यूज हो रहा है, टू होल्ड द मैसेज क्यू इज यूज, ठीक है, वन सेंडर वन रिसीवर, ये है इसमें। सेकेंड टाइप क्या है, पब्लिशर और यू कैन से सब्सक्राइबर मैसेजिंग डोमेन। See, in this model, in subscriber model, one message is delivered to all the subscriber। एक मैसेज पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, ये क्या, इन सब्सक्राइबर मॉडल वन वन मैसेज इज डिलीवर्ड टू ऑल दी सब्सक्राइबर्स, लाइक ब्रॉडकास्टिंग। एक मैसेज डिफरेंट मतलब मेनी सब्सक्राइबर्स को जाएगा, जितने भी सब्सक्राइबर्स है एक मैसेज उसको डिलीवर्ड होगा। एक दिस टाइप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बोली ना। जैसे हम लोग एक कोई भी एग्जांपल हो, हमारा नेटवर्क जो है, अगर सेम ऑपरेटर के सब्सक्राइबर्स है तो दे विल गेट सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, सेम टाइप ऑफ ऑफर्स दे विल गेट, राइट। जो भी रिचार्ज है सेम टाइप का ऑफर दे विल गेट ना, अगर सेम सेम टाइप के सब्सक्राइबर है। तो इट इज लाइक ब्रॉडकास्टिंग ऑफ मैसेजेस टू द सेम सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइबर मॉडल में, पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल मीन्स एक मैसेज जो है डिलीवर्ड होता है, वन मैसेज इज डिलीवर्ड टू ऑल दी सब्सक्राइबर्स, ठीक है, इट इज लाइक ब्रॉडकास्टिंग। तो हियर यहाँ पे क्यू यूज होता है टू होल्ड दी मैसेज अंटिल द रिसीवर इज रेडी, क्यू होता है पीटीपी में। बट इन सेकेंड इसमें सब्सक्राइबर मॉडल टॉपिक, सब्सक्राइबर मॉडल में क्या वर्ड है वो, टॉपिक। टॉपिक इज यूज एज अ मिडलवेयर। इसमें क्या यूज होता है, मिडलवेयर, टॉपिक। टॉपिक इज यूज एज अ मिडलवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड एंड डिलीवर मैसेजेस। होल्ड करना मैसेज को, फर्स्ट होल्ड करना जो भी मैसेज अराइव होंगे, देन डिलीवर करना। तो हियर which one is responsible, topic। topic is responsible, it is act like a middleware that is responsible to hold and deliver messages, okay। तो सी जीएम जो ये है हमारा टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे, लाइक अगर यू कैन टेक डिफरेंट एग्जांपल्स है उसके, जहाँ पे मैसेज क्या होता है, वो होल्ड करता है देन डिलीवर करता है, ठीक है।
अभी एक इसमें क्या होगा, अगर मुझे सेम टाइप के सब्सक्राइबर जो है उसको मैसेज मुझे डिलीवर करना है, ठीक है, तो क्या होगा, टॉपिक इज रिस्पॉन्सिबल टू सेम टाइप के समझो ऑफर्स है, तो टॉपिक में पूरा सेम टाइप के इंफॉर्मेशन स्टोर होंगे, सेम टाइप के ऑफर, ठीक है, जो सब्सक्राइबर्स है। फिर एक साथ ऐसा 1 to 1 नहीं जाएगा, सबको ब्रॉडकास्ट टाइप ऑफ मैसेजेस डिलीवर होंगे, सबको ब्रॉडकास्टिंग टाइप ऑफ मैसेज, मतलब एक साथ सबको जाएगा, एक जगह से मेनी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन जाएगा। तो इसी का मीनिंग है पब्लिश और सब्सक्राइबर मैसेजिंग डोमेन, ठीक है। ये हमारे फोन में भी, यू कैन टेक आवर, अब हमारा फोन का एग्जांपल जो एसएमएस सर्विस है, ठीक है, तो दोनों यूज में यूज हो रहा है, जो 1 to 1 हम लोग मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट, और जो हम लोग के मैसेजेस आते हैं कस्टमर केयर से, ठीक है, तो सब्सक्राइबर टाइप मैसेजेस होते हैं, दैट इज सब्सक्राइबर और पब्लिशर टाइप मैसेजिंग, बिकॉज वो मैनी सब्सक्राइबर्स को जो जा रहे हैं, ठीक है, सेम नेटवर्क डोमेन के मेनी सब्सक्राइबर्स को जा रहे हैं, तो दैट इज टाइप ऑफ सब्सक्राइबर मैसेजिंग डोमेन। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर इज, यू हैव टू रिमेंबर दैट इज पॉइंट टू पॉइंट में क्यू है, होल्ड और डिलीवर करने के लिए मैसेज को, और सेकंड वन में सब्सक्राइबर मॉडल में टॉपिक इज यूज, ओके।